started. ओके ओके, थैंक्स यार, चला गया आज का ज्ञान तो बहुत सारा, कोई बात नहीं, चलता है ये सभी अपना। सो 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 जो फंडामेंटल है बेसिकली वो क्या है कि इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग योर ऑन अपडेट सेट, सिस्टम विल गिव यू द डिफॉल्ट अपडेट सेट, एंड दैट इज नॉट ए बेस्ट प्रैक्टिस। ऑलवेज वो कहता है ना, वेन एवर यू गो इन टू द, जो आज के टाइम में इन कोविड बेसिकली, इफ यू गो फॉर सम आउटिंग, bring your own water bottle, take your own food specifically. So it is something like you can create your own update set and make sure that everything should be added into that update set. So today we are going to be start one more concept that is called the update set. How you can create it? There are two ways. Either you can click on this, or I tell you the basics thing. Go here and mention the update set. Okay. So this is the system update set is a my application. Let me tell you this thing is if it has some other definition other than the application or not. Okay. So now the thing is that who can use this update set module? The person who has right of the admin, or the person who has right of this thing can create the update set. Okay, so if let me what I can do, ठीक है, इसको बाद में चेक करते हैं एक बार, because you all are the admin now. Yesterday part you all are the admin, so we done that part. Okay, so to create any update set you should have a admin rights. Okay, now do one thing, Santosh, create a new group. Okay, and mark this group as a ITL group only. Okay, and in that group give a role of the ITL, nothing, only ITL, not ITL admin, only ITL. ठीक है, and everybody will add the new users which they are going to be created by their friend's name in that group. ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलेंगी, because I log in as a admin, this tuk-tuk has a admin role, so I can do anything, but I want to show you that how it is different for the ITL user. So do this thing. Okay, now the thing is that it has a multiple modules. Update source, what this mean? Suppose I want to bring the data, I want to bring the customization from the Tejal instance. मैंने बोला ना तेजल कि मैं आपके इंस्टेंस का डाटा यहाँ लेके आऊंगा या फिर मैं आपको अपना डाटा दूंगा. सो आई कैन डू द रिमोट सोर्सेस. ठीक है, डिटेल में इसको करेंगे आराम से. रिट्रीव अपडेट सेट. रिट्रीव अपडेट सेट मतलब कि भाई मेरा एक अपडेट सेट मैंने तेजल के सिस्टम में बनाया, एंड नाउ आई वांट दैट अपडेट सेट शुड बी अपीयर इन माय इंस्टेंस. सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? अपडेट सेट, एक अपडेट सेट मैंने बनाया तेजल के नाम से. ठीक है, इन द इंस्टेंस कॉल्ड एक्स. नाउ इन दिस अपडेट सेट I want this particular update set to be available in my instance that is called the y. So मुझे क्या करना पड़ेगा? I need to do the binding of this and this. x और y का बाइंडिंग करना पड़ेगा मुझे. इनके बीच में ब्रिज बनाना पड़ेगा, इनके बीच में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इनके बीच में कनेक्शन रेडी करना पड़ेगा. ओके, सो व्हेन आई से कनेक्शन रेडी करना पड़ेगा, इसका मतलब आई नीड टू बी सेट अप अ रिमोट पार्ट, क्योंकि देखो इसका पर्पस ही क्या है? रिमोट इंस्टेंस, राइट? इसका मतलब ये पर्टिकुलर मतलब कि मैं किसी अलग जगह बैठ के उसको यूज करूं. जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, इफ आई वांट टू मेक एनी चेंजेस इन संतोष लैपटॉप, then Santosh and I should have a software called the team viewer, and then I can make any changes in that system. It means I need to do some remoting part, और वो रिमोटिंग यहाँ पर सेटअप होती है, ये कनेक्शन यहाँ पर सेटअप होता है पूरा का पूरा. ठीक है, हाउ दिस कैन बी टेकन केयर, इसको मैं आराम से करता हूँ. पहले एक बार सारे से टॉपिक्स कवर करते हैं. रिट्रीव अपडेट सेट.
मीन्स जो भी अपडेट सेट तेजल के सिस्टम पर, तेजल के इंस्टेंस पर बन चुके हैं, वो सारे यहाँ के यहाँ शो होने चाहिए. बट इट हैज अ कंडीशन. कंडीशन क्या है? I can tell my transport person, okay, move this package into truck. When I say yes, it is fully packed. When I say fully packed, means my update set mark as a complete. It is a state of the update set. ठीक है. So मुझे यहाँ पर वो सारे update set दिखेंगे, and then I can use the update set which I want to be utilized. So we will do this part as well. Update log. Okay. When you shift your household things from one place to other place, what you see when you reach to the new place? कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, सारे लगे, सारे बैग आ गए हैं, जो उस घर में मेरा सामान था वो सारा का सारा यहाँ आया कि नहीं आया. इट मीन्स यू आर चेकिंग द लॉग्स टू आइडेंटिफाई द एरर्स, वार्निंग, मिसिंग कुछ रह गया मेरा वहां पे, उसके लिए हम लॉग्स को यूज करते हैं यहाँ पर. ठीक है. मेनली ये पूरा का पूरा जो काम है ना, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इट इज 100% फॉर द डेवलपमेंट टीम, हमारे लिए ज्यादा नहीं है. बट बीइंग ए कंसल्टेंट यू शुड, व्हेन अगर आपका डेवलपर आपको कहता है भाई मैंने अपडेट सेट मूव नहीं किया है, इट मींस ही डिड नॉट माइग्रेट द कोड फ्रॉम वन इंस्टेंस टू द अदर इंस्टेंस. ओके. देन मर्ज अपडेट सेट. इसमें लेडीज बहुत एक्सपर्ट रहती हैं. When I was shifting my home from the rented to my own home, I make a box for my thing. अच्छा भाई, इसमें मेरा सारा शेविंग का सामान है, या मेरा जो ये है आई कैन से मेरी बुक्स वगैरह है वो इसमें है. My wife also has one box, कॉस्मेटिक्स का है और उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह का था. She told, let's merge it in the one box. आपका भी कॉस्मेटिक्स या आपका भी शेविंग का सामान है और मेरा कॉस्मेटिक है, उसको एक रखते हैं और बुक्स को भी हम एक ही जगह कर देते हैं. So what we are doing? We are merging update set. Two update set को हम एक update set बना सकते हैं. From the technical perspective, it is required. From the functional perspective, it is not required. But this is a good thing to be understand. Merge completed set. वो सारे के सारे मेरे अपडेट सेट जो कंप्लीट हो गया उनको, इसमें आपको सिर्फ वो दिखेंगे जिसका स्टेट कंप्लीट है. सी राइट, वो. देन अपडेट सेट टू कमिट. अ गुड. नाउ थिंग इज दैट बेसिकली जो अपडेट सेट आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो अपडेट सेट आप बना रहे हैं, ठीक है, उसको कमिट करना. मतलब जो आप लेके, मतलब इस प्रॉब्लम, ओके, इसमें देखो रिट्रीव्ड अपडेट सेट्स और अपडेट सेट्स टू बी कमिट. मैंने तेजल के सिस्टम से कुछ अपडेट सेट अपने सिस्टम में लेके आया. आई जस्ट प्रीव्यू. what do you mean by preview? When I shift my household from one place to other place, as soon as I reach to the new place, I just count the boxes कि भाई सब पूरे हैं कि नहीं है. मेरा सामान कॉस्मेटिक्स का है, हाउस होल्ड है, किचन है, बेडिंग है, बेडशीट्स है, बुक्स हैं, बच्चे की सब चीजें, वो सब चीजें आई या नहीं है. आई एम जस्ट प्रीव्यूइंग दैट. आई एम नॉट सेइंग दैट ओके आई शिफ्टेड नाउ. नो, आई जस्ट प्रीव्यू एंड से यस, लुक्स गुड टू मी नाउ. Now I can go and unpack. When I say unpack means I can say unpacking means I am committing those things in my new place. तो ये सर्विस नाउ ने बेनिफिट दिया है डेवलपर को. इफ यू वांट टू कमिट देन कमिट, इफ यू डोंट वांट टू कमिट डोंट कमिट. मतलब कि अगर मैं बोलूं व्हेन, अच्छा आप लोग कब कहेंगे कि हाँ भाई मैंने अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया है? When you settle down completely, वो हर चीज जो आपकी डे टू डे रूटीन में चाहिए वो आपको मिल रही है अपने नए घर में. आपने बेडिंग सेट कर लिया, स्टडी टेबल सेट कर लिया, मंदिर हो गया, किचन हो गया. देन यू से टू द पीपल, हाँ भाई नाउ आई शिफ्टेड टू माय न्यू प्लेस. दैट इज कॉल्ड द कमिटमेंट. कमिट करा आपने उस चीज को, कंफर्म किया, एंड वंस कमिट यू कैन रोल बैक.
यू कैन स्टिल रोल बैक, लेकिन घर तो नहीं हम रोल बैक कर सकते इतनी जल्दी, ठीक है। एंड फाइनली अपडेट सेट कमिट हिस्ट्री, कि भाई आपने अब तक जितने भी अपडेट सेट कमिट किए उन सबका हिस्ट्री क्या है मेरे पास, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? नो सर। No, it's fine. इट्स फाइन, अंडरस्टैंड है ना सारा? दीपेश क्या कहते हो? Yes, Atul. Just need to understand what is there in the update set when we say that, for example, this training day set, or what is there exactly in it. और अगर जब हम इसको मूव करेंगे डिफरेंट इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी सिमिलर सेटिंग्स होगी ऑफ दो सिमिलर टेबल्स, तो वो कैसे इम्पैक्ट होगी? ओके ओके, नाइस 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 नाइस, ठीक है। कैसे इम्पैक्ट होगी ये एक पॉइंट है आपका, ठीक है। सो बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया दीपेश, अपडेट सेट में क्या रहता है, लेट मी ओपन द डेफिनेशन क्विकली, ठीक है, क्योंकि होगा हमें इजी रहेगा थोड़ा सा समझने में। An update set is a group of configuration changes that can be moved from one instance to other. This feature allow administrator to group a series of the changes into a name set and move them as a unit to the other system for testing or deployment. मान लीजिए, लेट्स टेक एक नॉर्मल एग्जांपल है, कहाँ गया ये, ठीक है, एक यूजर टेबल है, ठीक है। इस यूजर टेबल में एक फील्ड नेम है, नाउ आई एडिड वन मोर फील्ड, माई न्यू फील्ड, ठीक है। दिस इज आई एम डूइंग इन माई इंस्टेंस 86271, ठीक है। 86271 में एक यूजर टेबल है, ठीक है, जिसमें एक नाम का फील्ड है, एक क्लास का फील्ड है, और मैंने एक नया फील्ड यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ आई वांट, और ये मेरा इंस्टेंस क्या है, ये मेरा इंस्टेंस है डेव। इससे पहले इफ आई टेक एग्जांपल, मेरा डेव दोनों सेम है, डेफिनेटली सेम ही होंगे ना, क्योंकि सेम इंस्टेंस है। मैं गाइस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिमोट इंस्टेंस, मैं अपने ही इंस्टेंस का नेक्स्ट एनवायरनमेंट चेक कर रहा हूं। पहले मैं डेव में था, अब मैं टेस्ट में चेक कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? ठीक है, सो मैंने क्या किया, एक्चुअली अपने इंस्टेंस में एनवायरनमेंट कैसे चेंज करते हैं? हम एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते एक्चुअली शिल्पी। अगर आपने नोट किया हो ना, जो मेरा पर्सनल इंस्टेंस होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द डेव, राइट, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंस्टेंस है, इसलिए सर्विस नाउ ने इसका नाम रखा डेव। लेकिन व्हेन वी वर्क इन द आईटी कंपनी, जहां पर एक्चुअली में सर्विस नाउ यूज होता है, दे हैव अ 3 डिफरेंट इंस्टेंस विद द सेम नेम, ठीक है। जैसे मेरे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए यहाँ पर मेरी जो पुरानी कंपनी थी, मेरी एक्स कंपनी में एग्जांपल लेता हूं, उनका एक इंस्टेंस था साइलो डेव, ठीक है, टेस्ट साइलो, तो ऐसे थे उनके इंस्टेंस। क्योंकि वो एक कंपनी थी, तो उन्होंने अपने इंस्टेंसेस को नंबर नहीं दिया, ये वाला जैसे हमें नंबर मिला हुआ है, ये नहीं था। उनको एक नेमिंग कन्वेंशन मिला था, साइलो डेव, साइलो टेस्ट, साइलो प्रोडक्शन, ठीक है। बिकॉज इट इज अ पर्सनल इंस्टेंस, वी कैन हैव ओनली वन इंस्टेंस एंड दैट इज अ डेव, इसलिए इसको पीडीआई कहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस, ठीक। ओके, आप ही के करियर से मैं एक क्वेश्चन पिकअप करता हूं। सो as I know Shilpi a little long time now, so Shilpi worked as a tester. Okay, she was as a tester. So Shilpi, the question is that in which environment you do the testing?
हम लोग तो लाइफ में ही करते थे, मतलब ऑटोमेशन करते थे बेसिकली। नहीं, बट कोड इससे पहले, बैंकिंग एडवांस। कोड इससे पहले कहीं तो टेस्ट करते करते होंगे ना आप। डेवलपर ने बोला यस दिस कोड हैज बीन फिक्स्ड नाउ, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? मे बी इन द यूएटी, यूएटी करेक्ट। राइट? सो अब वो जो यूएटी है, the same application is available in the dev, same application available in the UAT, same application available in the production as well. So वो उसकी 3 different environments हैं basically, right? So वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको रहेगा, क्योंकि I cannot show you my actual officials में आपको नहीं दिखा सकता यहाँ पर अपने instances, otherwise आपको clear हो जाता है कि अच्छा भाई देखो ये है। तो in short, when I say the environment ना, it means I have a one paper, उसकी 3 कॉपीज हैं, क्लास वर्क, होमवर्क और फाइनल एग्जाम, ये मान के चलो आप। सो क्लास वर्क क्या है? अब जैसे अगर मैं बोलूं आपके बेटे को स्कूल में काम मिलता है कि भाई क्लास वर्क है मेरा ये, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस जब आप कराते हो सकता है आपने घर के लिए एक, मतलब जो प्रैक्टिस के लिए एक अलग कॉपी रखी है, पीडब्ल्यू प्रैक्टिस वर्क, और जब मैडम चेक करती है वो होमवर्क की कॉपी में चेक करती है। मैडम इज नेवर इंटरेस्टेड इन द CW और PW, शी इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द होमवर्क, राइट? वो उस नोटबुक में इंटरेस्टेड रहती है, राइट? शिल्पी बताओ, क्लियर या कोई डाउट इसमें? ठीक है, आई एम क्लियर। ठीक है ना? सो वो चीज है, इसलिए अब आप यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द Amazon वेबसाइट कि भाई आज ऑफर क्या चल रहा है। आपको नहीं पता कि वो ऑफर उस साइट पे दिखाने के लिए, उस फोटो को दिखाने के लिए पहले क्या क्या चेंजेस करे गए होंगे, ठीक है? सो वो उनका डेव होता है, उनके वहां पे भी टेस्टिंग होती है, और फिर उनके वहां पर वो एज ए होमवर्क आपको लॉन्च कर आपको दिखाते हैं, ठीक है? सो ये इंस्टेंसेस में रहते हैं। अब बारी आई थी जो दीपेश ने क्वेश्चन रेज किया, सपोज ये मेरा इंस्टेंस है, इसमें एक यूजर टेबल है एंड आई एम वर्किंग ऑन द डेव। मैंने एक नया फील्ड ऐड किया, न्यू एडिशन, और इसे मैंने कैप्चर किया अतुल अपडेट से। मैंने इस पर्टिकुलर कंटेनर में इसको कैप्चर किया, ठीक है? नाउ what will happen, Dipesh, when I move this update set to my test, तो इस टेबल में भी ये नया फील्ड ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ये पर्पस होता है मेरे अपडेट सेट का, कि आपको डेटा एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना है। देखो बहुत बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं इसको एग्जांपल से रिपीट कर दोबारा से, जब हम घर शिफ्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि जब हम नया घर शिफ्ट करते हैं तो हर चीज हम लेके जाते हैं। कुछ चीजें जो पुराने वहीं पुराने घर में छोड़ जाते हैं, राइट? और कुछ चीजें होती हैं जो हम नए घर में जाके पुराने घर से नए घर में लेके जाते हैं। हो सकता है उनकी जगह चेंज हो जाए, हो सकता है उनका साइज चेंज हो जाए, हो सकता है उनको दिखने का तरीका चेंज हो जाए, बट वी शिफ्ट टू द न्यू हाउस एंड देन, अब देखो, अब मेरा ये वाला इंस्टेंस और ये वाला इंस्टेंस दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर भी यूजर में 3 फील्ड है और यहाँ पर भी यूजर में 3 फील्ड है। नाउ पॉइंट में भी आपको, दीपेश आपके मन में होगा, अतुल अगर यही काम है तो ये तो मैं टेस्ट में जाके नया फील्ड बना देता हूँ, राइट? हाँ या नहीं? मतलब लॉजिकली ना, मैं क्यों अपडेट सेट बनाऊं? यस यस। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे शूट करते हैं। तो अपडेट सेट बनाने का क्या फायदा है? अगर यही काम मैं टेस्ट में जाके मैनुअली बना सकता हूं, मेरे पास राइट से मैं बना सकता हूं, तो मुझे अपडेट सेट क्यों बनाना है? सोचो, थोड़ा सा 2 मिनट सोचो, और इस पे एक मैं आपको वो देता हूं, हेड्स अप देता हूं, इट इज रिलेटेड टू सम यूनिकनेस। सोचिए। हाँ, आई मीन ये तो एक सिंपल चेंज है कि आपको सिर्फ एक फील्ड ऐड करनी है, बट ओके, यू कुड हैव मेनी अदर चेंजेस एज सच, नॉट राइट, जस्ट लाइक दिस, राइट, so you can club all of them and then move it. बट इसके अलावा पर्पस क्या है, दिवेश?
क्योंकि इन सबको आप एक साथ टेस्ट भी करोगे बिफोर मूविंग फ्रॉम दिस इंस्टेंस टू अदर इंस्टेंस. ओके, और ओके, I am sure that if you guys remember कि when we started this class, maybe after 2 or 3 days, we pick up one concept called the sys id. याद है कुछ? Yes, yes. sys id क्या होता है? The unique reference of record in Snow. यूनिक रेफरेंस ऑफ रिकॉर्ड इन स्नो. ओके, मतलब थोड़ा सा और इसको डीप में चलते हैं. और बताओ, शिल्पी बताइए sys id क्या होता है? संतोष, ये क्वेश्चन नोट करना और डालना, sys id पढ़ना है. यस सर. ये एक ऑटो जनरेटेड अल्फा न्यूमेरिक मतलब एक हर एक रिकॉर्ड के लिए जनरेट होता है. इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट एनी आइडेंटिटी. एग्जैक्टली राइट. अभी क्या है दीपेश, बेसिकली इफ आई क्रिएट दिस फील्ड न्यूली इन द टेस्ट, मतलब अगर इसको अपडेट सेट से नहीं लेके आता, मैं इसको नया बनाता हूं, देन द sys id for this field and this field will be the different. ठीक है. और उस केस में क्या होगा, अगर नेक्स्ट टाइम आप कोई डेटा डाल के लेके आ रहे हैं इस फील्ड में, वो यहाँ पे मैच नहीं होगा क्योंकि उसका sys id अलग हो जाता है. Okay. ठीक है. सो फॉर द कंपैरिजन पर्पस एज वेल, sys id इज यूजफुल. ये सिस्टम बैकग्राउंड में चेक करता है. मैं आपको शो करता हूं यहाँ पे. ठीक है. अब जैसे ये है मेरा, इसको ओपन करते हैं डिफॉल्ट को एक बार. ठीक है. sys id आपको कहीं पे भी फॉर्म पे नहीं दिखेगा, पहली बार. और sys id आप कभी लिस्ट व्यू में भी नहीं लेके आ सकते. ठीक है. व्हाट आई विल डू, लेट मी गो एंड शो XML. अरे XML तक तो पहुंचने की जरूरत नहीं थी. हाँ, चलो XML शो करते हैं. देखो ये रहा sys id. ठीक. सो जितने भी रिकॉर्ड, जितने भी फील्ड्स मेरे इस टाइम सिस्टम में बने हुए हैं, हर एक का अपना sys id है जो सिस्टम इंटरनली मेंटेन करता है और इंटरनली उससे क्रॉस वैलिडेट भी करता है. ठीक है. सेकंड पॉइंट, मान लो अगर आपने ये फील्ड टेस्ट में जाके बनाया और आपने इंटीग्रेशन करा हुआ है कुछ, तो भी ये चांसेस हैं फेल हो जाएगा क्योंकि sys id मैच नहीं होता. आपको जरूर लगता है कि हाँ भाई एक यूजर बना अतुल ग्रोवर, लेकिन सिस्टम में वो अतुल ग्रोवर नहीं है, वो sys id से पहचाना जाता है मेरा. ठीक है. Right. तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमारा sys id यूज होता है. ओके. अब सर अभी एक क्वेश्चन है. हाँ बोलिए. समवेयर आई रेड ये यूजर वी कैन नॉट कैप्चर इन अपडेट सेट. अपडेट सेट, एग्जैक्टली राइट. मतलब यूजर, ये मेरा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, बट ये प्लस माइनस में रहता है कई बार. ठीक है. कुछ लोग कहते हैं कि हाँ कुछ कैप्चर होते हैं अपडेट सेट में, कुछ चीजें कैप्चर होते हैं यूजर टेबल की, और कुछ यूजर रिकॉर्ड्स में कहूंगा, टेबल नहीं, यूजर रिकॉर्ड होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं होते हैं स्पेसिफिकली. ठीक है. इवन रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स भी कैप्चर नहीं होते हैं कई बार. हाँ जी. ठीक है. सो ये पॉइंट है एग्जैक्टली, इस पे मैं बिल्कुल एग्री हूं कि आप ये पॉइंट मान के चलो कि अपडेट सेट में कई बार यूजर्स कैप्चर नहीं होते मेरे. ठीक है. बट हम ट्राई करके देखेंगे. इसके लिए एक अलग तरीका भी आता है, दैट वी विल डिस्कस इन द सम अदर क्लास. ठीक है. अभी क्या है, क्योंकि अब जैसे अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ये वाला रोल असाइनमेंट्स वगैरह चल रहा है, इसके बाद हमारा टेबल्स बनेंगे, तो टेबल्स के लिए मुझे अपडेट सेट चाहिए होगा. सो बेटर है आई टेल यू नाउ कि अपडेट सेट कैसे बनेगा पहले. ओके. ठीक है. इसीलिए सो अब क्या है, मैं अपने इंस्टेंस dev 86271 पर हूं और मुझे अपने ही इंस्टेंस पर एक अपडेट सेट बनाना है. नाउ आई गो एंड क्लिक ऑन द अपडेट सेट हियर.
न्यू। ठीक है, देखो बाय डिफॉल्ट उसने नाम ले लिया ट्रेनिंग अपडेट सेट अतुल 2, क्योंकि मैंने पहला भी कुछ ऐसे ही रखा था नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, अतुल, हमारे इंस्टेंस में तो अभी आई मीन विल नॉट बी एबल टू सी एनी अपडेट सेट ऑफ कोई रिकॉर्ड नहीं है। होगा, डेमो रिकॉर्ड्स होती हैं, हम डेमो रिकॉर्ड्स लेके आते हैं ना सारे। अच्छा अच्छा, ओके। डेफिनेटली देखो, अगर आपको चेक करना, आप यहाँ जाओ, अपडेट सेट, लोकल अपडेट सेट, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एटलीस्ट डिफॉल्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ पर इंस्टॉल्ड है ग्लोबल एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, उन सबका अपडेट सेट तो होगा ही होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मिनिमम 1 तो मान के चलो होगा आपके पास। ठीक है। ठीक है, तो वो नाउ आई क्लिक ऑन द न्यू। मैं यहाँ नाम देता हूँ, इसको ऐसे करते हैं, ट्रेनिंग बैच 2 सेट। ठीक है, मतलब ये गोइंग फॉरवर्ड वी विल ट्राई कि हम इसी अपडेट सेट को यूज करेंगे अपने काम को आगे करने के लिए। ठीक है, स्टेट ऑलवेज शुड बी द इन प्रोग्रेस जब आप बना रहे हैं। अगर आपने अपना अपडेट सेट कंप्लीट कर दिया तो इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक इसको इन प्रोग्रेस में रखें। ठीक है, मतलब जब तक आप कंटेनर में चीजें पैक कर रहे हैं, मेक श्योर कंटेनर शुड बी ओपन। कंटेनर बंद होके सील पैक हो गया, इसका मतलब उसमें और सामान नहीं आएगा। इफ यू वांट टू मेक और यू वांट टू रिलेट दिस पर्टिकुलर अपडेट सेट विद द पेरेंट। अब यहाँ पे आते हैं पेरेंट का क्या मतलब होता है, बेसिकली पेरेंट हम क्यों यूज करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल फ्रॉम हियर। ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक, और मैंने बोला तेजल, संतोष, शिल्पी, दीपेश, ईश्वरी, ये 5 लोग मेरे डेवलपर हैं। ठीक, और साथ में मैं एडमिन, जिसे कुछ नहीं आता। ठीक है, ये 5 लोग मेरे डेवलपर हैं। अब क्या तरीका है कि भाई इनको मैं बोलता हूँ एक काम करो, आप अपना अपना अपडेट सेट तो बनाओ अलग से, अपने नाम से बनाओ या अपने से बनाओ, लेकिन मुझे, क्योंकि मुझे पता, और इसमें क्या करता है, मेरी एक एप्लीकेशन में, उसमें मैं एडिशन का मॉड्यूल बना रहा हूँ मान लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ यार, बाद में जब हम मूव करेंगे इस अपडेट सेट को, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि इसमें ये क्या है, तेजल का कौन सा है, संतोष का कौन सा है, शिल्पी का कौन सा है। तेजल गुस्सा हो जाएगी, मेरे नाम पे सिंगल टी लिखा है। ठीक है, दीपेश का कौन सा है और ईश्वरी का कौन सा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं एडमिन हूं ना, मैं आपको एक अपडेट सेट बना के देता हूँ अतुल, और ये अतुल के नाम से नहीं, एडिशन मास्टर, ये अपडेट सेट मैंने बनाया। और गोइंग फॉरवर्ड जब तक हम इस वाले मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, आप सभी लोग अपना अपडेट सेट बनाएंगे इंडिविजुअल और उसको इससे टैग करेंगे। तो मतलब होगा क्या, ये पेरेंट हो गया, ये तेजल का हो गया एक अपडेट सेट, संतोष का हो गया, शिल्पी का हो गया, दीपेश का हो गया और ईश्वरी का हो गया, ताकि मुझे इजी रहे आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई एक मेरे मॉड्यूल में कितने सारे अपडेट सेट जा रहे हैं, उन अपडेट सेट में क्या क्या चेंजेस है मेरे। ठीक है, ये पर्पस होता है मेरा पेरेंट का। और ये कहां पर यूज होता है, ये बेसिकली यूज होता है जब हम स्प्रिंट्स में काम करते हैं, जब हम एजाइल मेथोडोलॉजी में काम करते हैं, तब वहां पर ये पेरेंट का काम ज्यादा होता है। और इसको कोई रिलीज डेट की भाई 10 दिन 15 दिन तक अपडेट सेट ओपन रहेगा, जिसको जो भी चेंजेस ऐड करना है यहाँ पर कर सकता है, देन यू कैन ट्रीट हियर। ठीक है, कोई डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, हाँ, कोई डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, यू कैन राइट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, कि भाई कब इसको हटा दें, डेट को बाय डिफॉल्ट बोलेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस वन। सो आई विल से डेमो ऑफ बैच 2। अब देखो दो ऑप्शन है, सबमिट एंड सबमिट एज मेक करंट। अभी करंट अपडेट सेट कौन सा है, इट्स अ डिफॉल्ट वन। आई एम अगेन टेलिंग यू, whenever you work as a developer, always check your update set before you start working on the coding or the customization part. ठीक है, now I click on the submit and make current.
कहाँ गया? देखो ये आ गया, सॉरी। योर करंट अपडेट सेट हैज बीन चेंज द ट्रेनिंग बेस टू अपडेट सेट ग्लोबल, क्योंकि मैंने ग्लोबल एप्लीकेशन में रखा है इसको। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, जब तक मैं काम कर रहा हूं मेरे सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस, सॉरी कस्टमाइजेशन जो रहेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशंस भी रहते हैं बेसिकली, मेरी प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ रहती हैं, वो सारे के सारे मेरे यहाँ पर कैप्चर होते जाएंगे। मतलब इट इज अ सिंगल प्लेस जहां पर मेरा बॉक्स, अब मैंने बॉक्स बना दिया है, उस बॉक्स के अंदर मैं अपना सारा सामान डालना शुरू कर दूंगा। ठीक, क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? So Atul, this will cover only those things, right, which are applicable for everyone and not the personalized things, right? नहीं, पर्सनलाइज कुछ नहीं रहेगा इसमें। Okay, okay. Okay, and this update set you can share with the multiple people as well। भाई मैंने बना दिया, तुम भी यही यूज कर लो। But if you are a developer, we always recommend not to share your update set with anyone। आप अपना अपडेट सेट बनाओ, उसमें कैप्चर करो। ठीक है, सो दिस इज अगेन बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक, तेजल कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। ईश्वरी, ईश्वरी आई क्या वापस? नहीं सर। वापस आ गई ना? अच्छा, ओके ओके। शिल्पी, बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं लग रहा मुझे, पर मुझे लगता है थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ज्यादा समझ आएगी। हाँ, और देखिए वैसे वो हम डिस्कस कर रहे थे। सो नाउ इट इज ठीक है, हाई टाइम है। अतुल नॉट ऑडिबल। के लिए प्लीज शिल्पी, अरे कहाँ गए? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सॉरी, मैं यहाँ पे अतुल बोलूँ? आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। आपने अगर कुछ बोला है तो लास्ट मिनट कोई सुना नहीं होगा परहैप्स। बेसिकली अब आप सबके लिए हाई टाइम है कि आप अपना प्रैक्टिस करते रहें डेली बेसिस पे, बिकॉज डाउन द लाइन जब हम अपने टेबल्स और मॉड्यूल्स पे पहुंच जाएंगे, सो इट इज टफ फॉर एवरीवन टू रिमेंबर द प्रीवियस थिंग्स। ठीक है, सो डोंट डिले योर प्रैक्टिस। पढ़ो कम से कम, एटलीस्ट थ्योरेटिकल पढ़ो कि हाँ उसमें क्या चीज होती है। ठीक है, सो दिस वाज द पर्पस ऑफ द अपडेट सेट, वन थिंग। नाउ आई विल गो बैक टू द प्रीवियस वन, यस्टरडे जो हमारा डिस्कशन था ग्रुप के ऊपर। ठीक है, कोई यूजर के ऊपर कोई डाउट है क्या? यू नो वांट टू अंडरस्टैंड इन द यूजर टेबल की यूजर टेबल में क्या है, कैसे है, क्यों है? नो ओके, ठीक है। नाउ आई विल कम टू द ग्रुप पार्ट। सो हमने बोला कि ग्रुप क्या होता है। बेसिकली ग्रुप का पर्पस क्या है? अ सेट ऑफ पीपल हु वर्क फॉर अ कॉमन गोल, जो किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। ठीक है, यहां मेरा नाम है कि ग्रुप का क्या नाम रखना, जैसे हमने बैच 2 रखा था, वो था हु इज द मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, इसका पर्पस क्या है मैनेजर का? क्या कहते हो, क्या पर्पस है इस ग्रुप के मैनेजर को रखने का? संतोष क्या कहते हो? सर मैनेजर का ये फील्ड का यू आर आस्किंग? हाँ राइट। It's like a relationship. I mean, इन फ्यूचर में कहीं हमको रेफर करना है तो इसके इजी हो अलावा, जाएगा। इसके अलावा शिल्पी क्या कहते हो? आई मिस्ड योर क्वेश्चन अतुल, आप रिपीट करेंगे? What is the purpose of field manager in the group table?
अरे बहुत सिंपल सा है, सोचो। जो संतोष जी ने कहा वही है। ओके ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा एडिशन करता हूँ। ठीक है, बात ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आई एग्री। आपका फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? आपकी हाँ जी, सोसाइटी का, आपकी सोसाइटी का भी व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा। यस यस। कैन यू ऐड मी इन दैट? I mean, I should be admin if I want to add you. हाँ अच्छा, And I mean, I should not be adding you if at all I'm admin also, because it's my community yes, group. exactly. It means when we say that I am putting a manager, means whenever I am making some catalog or I want to add some new person in my group, so I should go for this person approval. मुझे रन टाइम पे देखने की जरूरत ना पड़े। अगर मान लीजिए मुझे अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को ऐड करना है या कोई टेनेंट नया आया है मेरी सोसाइटी में, सो ही और शी नीड टू बी अप्रोच टू द सेक्रेटरी और द प्रेसिडेंट और द अदर ऑफिस बिल्डर ऑफ द सोसाइटी कमिटी. If they allow, only then that person will be added into that particular group. Yes or no? yes very much. Yeah. So this is the purpose of keeping the manager in the field, manager field into the group table, ताकि भाई कोई तो अकाउंटेबल हो. देखो अभी ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, बट यू कैन डिफाइन योर वर्क फ्लो that if you want to add a new person into the group, I require the manager approval. ठीक है, अदरवाइज तो कोई पर्पज नहीं, किसी को भी ऐड कर दो. संतोष बोलेगा तो आपको क्या, मैं शिल्पी को भी ऐड करता हूँ, दीपेश को भी ऐड करता हूँ अपने सोसाइटी ग्रुप में, क्योंकि करना तो मुझे कुछ है नहीं, मुझे तो सिर्फ वहां बैठना है. लेकिन ही नीड समवन अप्रूवल. भाई अतुल मेरा दोस्त है, उसको मैं ऐड करूँ क्या? बोले क्या करते हैं अतुल, हमारी सोसाइटी के मेंबर है? नहीं है, तो फिर नहीं ऐड होंगे वो. तो वो चीजें ठीक है. नाउ ग्रुप ईमेल. ग्रुप ईमेल क्या होता है? अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, मैं अब आपको बताता हूँ. जैसे किसी भी कंपनी में आपको कभी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसका एक ईमेल आईडी होता है, info@this things or the career@ or this HR@this. So that is a group email ID. इसे हम कहते हैं, एक तरह से इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कहते हैं, या हम कहते हैं कि अगर आपको किसी भी इशू का कोई मतलब इसको कोई इस पर्टिकुलर स्टफ में कोई भी इशू है, तो आप इस ग्रुप को मेल डालो, इसमें बहुत सारे लोग हैं, वो आपको रिप्लाई कर देंगे. अगेन सिंपल सी बात, सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप, अगर संतोष के घर में पानी नहीं आ रहा है, संतोष ग्रुप में डालेगा, अरे भाई आज पानी नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या सोसाइटी में, टैंकर्स नहीं है क्या, प्रॉब्लम है, देन पीपल विल रिप्लाई यू. सो इट इज काइंड ऑफ ए ग्रुप ईमेल. आपने एक पर्टिकुलर मेल को मेल किया और उसमें मल्टीपल पीपल है, आपको कंप्लेंट है सोसाइटी में किसी चीज से, तो आप सेक्रेटरी को जाके पिंग नहीं करोगे, सोसाइटी का एक ईमेल आईडी होगा, उसको मेल डालोगे, उसको जो लोग एक्सेस कर सकते हैं उस ईमेल आईडी को, उसमें से कोई ना कोई आपको रिप्लाई बैक करेगा, बोलेगा हाँ संतोष ये प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे. दैट इज द पर्पज ऑफ द ग्रुप ईमेल. ठीक है. By default, the group email address override individual email address of member. Again, a very important point from the service desk perspective. Dipesh and Santosh from your side. अगर आप किसी ग्रुप में ग्रुप ईमेल आईडी डाल रहे हैं, सो होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए मेरा एक ग्रुप है, ठीक, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, मेरा एक ग्रुप है, ग्रुप साइलो, ठीक है, और इसका ईमेल आईडी क्या है मेरा, s.s.com. ठीक है, इसमें 5 मेंबर है, ए बी, बहुत ज्यादा हो जाएंगे. ए का ईमेल आईडी है a@s.com, बी का है b@s.com, सी का है c@s.com. अब अगर आप अपने ग्रुप में ये ईमेल आईडी नहीं डालते और आप मेल भेजते हैं, आप या आपको टिकट असाइन करते हैं ग्रुप में, तो इन सबको अलग अलग मेल जाएगा. नंबर 1 पॉइंट. और ये कंसर्न रहता है कस्टमर्स का, संतोष एंड दीपेश स्पेसिफिकली फॉर यू, ये कंसर्न रहता है कस्टमर्स का कि भाई
ये बताओ अगर मैं ग्रुप में या मैं अगर इस ग्रुप में कोई टिकट असाइन कर रहा हूं तो वो ईमेल किसको जाएगा? तो उनको बोलो इफ यू आर नॉट पुटिंग द ग्रुप ईमेल आईडी तो आपके इंडिविजुअल लोगों को उनके मेल बॉक्स में मिल जाएगा। इफ यू पुटिंग द ग्रुप ईमेल आईडी, इन लोगों को मेल नहीं जाएगा अलग से, क्योंकि आपने एक जगह मेल डाला है। और इसमें अब इस मेल बॉक्स एक्सेस किसके पास है? इट डिपेंड्स इन योर ओन कंपनी, वो आपकी कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ग्रुप ईमेल आईडी का कंसेप्ट होता है, ठीक। पेरेंट का मतलब यहाँ पर Atul, just one question here. हाँ दीपेश। So it says that by default group email will override the group member's email ID. Yes. So I mean, is it possible with customization that we can keep both? I mean, have you seen such instances? एक मिनट, मैं एग्जांपल देता हूँ। ग्रुप हमने जो बनाया था ना उसको पिकअप करते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन रहता है इंक्लूड मेंबर करके। I need to be check that part only. Let me open any one application development group. Configure form layout. Actually, there's a checkbox include member. एक मिनट को मैं इसके फॉर्म लेवल पे देखता हूँ कोई फील्ड है क्या इसमें। बहुत स्लो है यार मेरा सिस्टम। हाँ ये रहा, ओके। हाँ देखो ये रहा इंक्लूड मेंबर्स। इफ यू टिक दिस बॉक्स इट विल गो टू द मेंबर्स एज वेल। तो दोनों को जाएगा, ग्रुप ईमेल को भी और मेंबर। राइट। So in this case, Atul, the two email is going to generate, one through that group and one individually. राइट। देखो अगर मैं ईमेल दो जनरेट होंगी और एक तो जो कॉमन मेल बॉक्स है उसमें जाएगी और एक इंडिविजुअल लोगों को भी जाएगी। Okay. सो इट इज अ चेक बॉक्स, ठीक है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। इसको आप बेशक कमिटी में पढ़ सकते हैं। इन अ ग्रुप मेंबर इन क्विकली लेट हैव अ पॉइंट ऑन दैट, क्योंकि ये चीजें क्लैरिफाई होनी ज्यादा जरूरी है अभी। ओके कुछ काम चल रहा है इनका। ओके ओके डॉक्यूमेंटेशन पे पूरा नहीं है। क्रिएट अ यूजर ग्रुप एक्टिव एक्सक्लूड मेंबर इंक्लूड नहीं है कि इसमें ग्रुप मेंबर इंक्लूड नहीं यार, थोड़ा सा आई गेस स्लो चल रहा है, बट यू कैन गेट ऑप्शन बाय। तो लिखा हुआ था इंक्लूड मेंबर। हाँ हियर नहीं इसमें सिर्फ यही था, वो तो मेरे क्वेश्चन था जो हम ढूंढ रहे थे। हाँ ये चेक बॉक्स दैट कंट्रोल वेदर द ग्रुप मेंबर रिसीव इंडिविजुअल ईमेल्स व्हेन समवन इज सेंड टू द दिस वन, ठीक है। सो ये कंसेप्ट हमें दिया हुआ है सर्विस नाउ ने, ठीक। सो ओनली डिफरेंस इज दैट क्योंकि ये फील्ड मेरा फॉर्म पे अवेलेबल नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रहा वो अभी, ठीक है। बट दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन द सर्विस, ठीक है जी। ओके ओके पेरेंट हमने देखा कि भाई एक पेरेंट है, मान लीजिए एक एचआर का ग्रुप है और एचआर में अलग अलग ग्रुप है, एचआर पॉलिसी, एचआर प्रोसीजर्स, एचआर लीव्स, एचआर डॉक्यूमेंट्स, तो वो आप वैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज के लिए वो रहेगा ये वाला टाइप, ठीक है। और ये टाइप आप पढ़ना वीकेंड पे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइप ऑफ दिस ग्रुप। ये यहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा आपको टाइप का। हाँ ये देखो ये टाइप, ठीक है। This is a category of the group. For example, a group designated as a catalog is a service catalog group and can also be accessed under the service catalog this fulfillment disk, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जो टाइप है ना वो ये बताता है कि ये वाला ग्रुप कहां पर विजिबल होगा यूज करने के लिए। मतलब अगर मैं यहां बात करूं
एक इंसिडेंट पिकअप करते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू नहीं, ओपन लेते हैं कोई, ठीक है। एग्जांपल मैं शो करता हूँ। ये गए, देखो आप चाहते हैं कि मैंने एक ग्रुप बनाया, वो यहाँ पर विजिबल होना चाहिए इस पर्टिकुलर असाइनमेंट ग्रुप के अंदर, तो उसका ग्रुप टाइप आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो यहां से होगा, टाइप, क्लिक ऑन अनलॉक, और यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे। ये देखो, ये इतने सारे टाइप हैं आपके। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, देखो ये सर्विस नाउ ने मुझे डिफॉल्ट टाइप दे रखे हैं। जैसे अगर आप आईटीएल रखेंगे, इसका मतलब वो इंसिडेंट, चेंज, प्रॉब्लम, नॉलेज, सब जगह वो अपीयर होगा वो ग्रुप मेरा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है टाइप डिसाइड करना, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहले बताओ, ये चीज क्लियर हुई है? इसको एक बार रिपीट करें। सर हाँ जी, मेरा जो ग्रुप है उसमें ना टाइप और वेंडर्स दोनों ऑप्शन नहीं है। वो फॉर्म लेवल पे नहीं होंगे, अच्छा और वेंडर इसलिए नहीं होगा क्योंकि शायद आपका ये जो सीएसएम वगैरह है वो इंस्टॉल नहीं है। मेरे में इंस्टॉल्ड है कुछ अलग से ये चीजें क्या, अच्छा इस वजह से वो जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो नहीं, शायद इसमें नहीं है बाय डिफॉल्ट, बट डिपेंड करता है कि आप किस लॉगिन से यूजर से लॉग्ड इन हो आप, ठीक है। तो वो चीज, सो व्हाट वी कैन And सजेस्ट, एक मिनट, व्हाट वी कैन सजेस्ट ना, कि अगर आपको यूजर इसको मतलब एक्सेस करना है तो यू कैन यूज माई सिस्टम, इट इज इजी फॉर यूज क्विकली, ठीक है। सब अपना अपने नाम से एक्चुअल यूजर आईडी बना लीजिए और अपने आप को एडमिन रोल दे दो, so that you guys can access everything here in my instance. हाँ दीपेश, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे बीच में। so you have shown different types. So Right. can we open those types and see कि मतलब what is there behind that type? So हाँ कर अगर सकते हैं let's ना, say रुको, it talks ITILs, yeah. लुकअप में गए, जैसे भी ITL है, अरे अटक गया, रुको, देखो ये यहाँ से आता है आपका सिस यूजर ग्रुप टाइप लिस्ट में से आता है। इसका रुको, मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, सिस यूजर ग्रुप टाइप लिस्ट, ये टेबल नेम होते हैं मेरे, Okay. ठीक है। सिस यूजर ग्रुप टाइप डॉट list। अच्छा एक और होमवर्क देता हूं मैं, ठीक है। मैंने ये टाइप यहाँ पे किया .list, इसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों में, ठीक है। कैपिटल LIST और स्मॉल LIST में क्या फर्क है दोनों में, पढ़ना। ये ट्रिक्स हैं जो एक डेवलपर यूज करता है बहुत क्विकली, ठीक है। संतोष ये डालना ग्रुप में। तो ये देखो, ये है आपके क्या कहते हैं दीपेश, ITL पे क्लिक करें तो वो सिर्फ उन्होंने लिखा कि ITL बेस्ड है, इसका व्यू तो डिफॉल्ट ही है, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे कोई स्क्रिप्ट लिखी गई हो जो उसको पिकअप करके लेके आ रही है। वो अगर आपको देखना हाँ है यहाँ वही मतलब कॉन्फ़िगर, और इसकी मैं अगर बात करूं, बिजनेस टूल कुछ है क्या इसका, देखें। नहीं, बिजनेस टूल तो इसका कुछ नहीं है, ठीक है। कॉन्फ़िगर रिलेटेड और टेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट्स, नहीं क्लाइंट स्क्रिप्ट्स भी नहीं है इसकी कुछ,
क्योंकि डेफिनेटली आपके पास ये है कि कुछ तो कोड लिखा होगा तभी वो वहां पर जाएंगे, राइट? हाँ वही वही, मतलब ऐसा कि हाउ यू कैन रिस्ट्रिक्ट सम ग्रुप टू राइट नॉट राइट राइट इंसिडेंट appear in राइट change something like राइट। सो वो हमें यहाँ से देखने पड़ेंगे सारे एक एक करके कि भाई इसके पीछे ऐसा okay कौन सा code लिखा गया ये, कि हाउ इट्स वर्क। हम्म लो देखो ये ACL है सारे के सारे कुछ जो इस टेबल के ऊपर लिखी गई हैं, okay okay ठीक है? सो वो चीजें आप उस पर फंक्शनिंग चेक कर सकते हैं आराम से बैकग्राउंड में, ठीक है? okay okay understand वो चीज। तो ग्रुप आपका टाइप डिफाइन करता है कि वो ग्रुप आपका एप्लीकेबल कहाँ पर दिखेगा, कहाँ पर, मतलब यहाँ पर दिखेगा या नहीं दिखेगा मेरा, ठीक है? जैसे अगर मैं करता हूँ एक बार, ठीक है? सो वो चीज है। देन वेंडर का बेसिकली पर्पस क्या रहता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक वेंडर के लिए यूज करना चाहते हैं, ये हो सकता है कि आपके इंस्टेंस में नहीं दिखे क्योंकि आपके में CSM या बाकी चीजें इंस्टॉल नहीं है, लेकिन मेरे में इंस्टॉल्ड है। जैसे मैंने वेंडर मैनेजमेंट का करके देखा है, GRC के मैंने कुछ चीजें इंस्टॉल करके देखी, सो उस वजह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? सो ये आप इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। एंड देन क्लिक ऑन द सबमिट, आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक? अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं ग्रुप से ना, ये वाले मेरे, इसको ओपन करते हैं ग्रुप, देखो इसका टाइप ITL है, राइट? तो वो चीज है, ठीक है जी? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? बोलो भाई, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं। ओके, ठीक है। सो बिफोर वी सम अप ना, मेरे पास एक दो पॉइंट और हैं जो डिस्कस करने वाले, क्योंकि कल और परसों का ऑफ रहेगा और पॉसिबली नेक्स्ट फ्राइडे का भी ऑफ रखूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा सोसाइटी में एक इवेंट है एक्चुअली नेक्स्ट फ्राइडे, वो है शिवाजी महाराज जयंती है यहाँ पर, तो सोसाइटी में प्रोग्राम है मॉर्निंग में, ठीक है? बट सैटरडे संडे वी विल कनेक्ट। ये लॉन्ग वीकेंड मत प्लान करना कहीं, अतुल तो नहीं है, निकल लो 3 दिन के लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक हम पक्का सैटरडे संडे में से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डाउट्स भी रहेंगे और हम कोर्स को भी आगे कवर करेंगे। आपका मेन काम क्या है अब इस वीकेंड पे, ठीक है? सबसे पहले सभी के सभी लोगों को, संतोष एक काम करो, जिसका यूजर बना हुआ है इस इंस्टेंस में फाइन, जिसका नहीं बना हुआ अपने ग्रुप में से उनका यूजर बना दो यहाँ पे, श्योर। और सबको सर्विस नाउ बैच 2 में ऐड कर दो, मैंने एडमिन राइट्स दे रखे हैं, ठीक है? पासवर्ड सबका एडमिन रखो और दे दो। हाँ जी। 2 दिन आप सभी लोग इस पूरे इंस्टेंस को खगालो, यूजर्स के रिकॉर्ड्स ओपन करके देखो, ग्रुप के रिकॉर्ड्स ओपन करके देखो, रोल्स को पढ़ो। रोल्स मैंने बोला था रोल्स पढ़ना है, रोल्स किसने पढ़े? कितने रोल्स होते हैं बताओ सिस्टम में, कौन कौन से रोल होते हैं? संतोष ये जरा नोट करना, मैं आपको बताता हूँ। आईटीएल का रोल पढ़ो, एडमिन पढ़ो, आईटीएल एडमिन पढ़ो, लिस्ट अपडेटर का रोल पढ़ो, लिस्ट अपडेटर लिस्ट व्यू होता है, रिपोर्ट का रोल पढ़ो, रिपोर्ट यूजर या रिपोर्ट अपडेटर कुछ करके होता है रोल, वो पढ़ो। CMDB का एक रोल होता है ECMDB के नाम से, वो देखो। इंसिडेंट मैनेजर का रोल देखो, चेंज मैनेजर का रोल देखो, नॉलेज मैनेजर का रोल देखो, और प्रॉब्लम मैनेजर का रोल देखो। अगर कोई प्रॉब्लम एनालिस्ट या इंसिडेंट एनालिस्ट है उनके रोल देखो, मतलब इनकी डेफिनेशंस पढ़ो और आपको डेफिनेशंस मिलेंगी यहाँ पर। यूजर एडमिन रोल, देखो ये डेफिनेशंस पढ़ो, इनकी डेफिनेशंस। क्यों, क्या अप्रूवर कौन से होते हैं? क्योंकि ये वो रोल हैं जो आगे यूज होने वाले हैं। और बीइंग ए कंसल्टेंट और बीइंग ए डेवलपर, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा रोल किस यूजर को देना है। ऐसे नहीं कि सबको एडमिन देके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो अप्रूवल एडमिन होता है, अप्रूवर यूजर होता है, एक टेम्पलेट एडिटर का रोल होता है वो, ठीक है? तो ये वो रोल है जो हर रोज डे इन डे आउट आपको यूज करने पड़ेंगे अपने रूटीन लाइफ में, व्हेन यू गो इनटू द सर्विस नाउ प्रॉपर्ली, ठीक है? सो ये आपका होमवर्क है। प्लस थोड़ा सा काम मैं और करता हूँ, फिर शिल्पी बोलेगी अरे अतुल आप तो टीचर बन गए बिल्कुल, ठीक है? इस वीकेंड पे जो हमारे इस वीक के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, सभी लोग मुझे 2-2 या 3-3 लाइनों में उन सबके आंसर भेजेंगे मेल पर, और मेरा मेल आईडी मैं आपको पिंग कर देता हूँ इधर चैट पे,
क्योंकि सबको लग रहा है कि चलो अतुल ने नहीं पूछा, बच गए हम। इस पे नहीं, दूसरे वाले पे लेते हैं, फिर मैं भूल जाता हूँ इस पे एक्चुअली। इस पे सभी मुझे संडे दोपहर तक अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को 1 या 2 लाइनर और अपनी वर्डिंग में लिखना, कॉपी पेस्ट मत करना नेट से, समझो और फिर उसको मुझे आंसर लिख के भेजो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? Yes, sir. Yes. अच्छा, let me stop the recording first and then we can discuss the next part.